हेलो। हाँ विशाल, यस सर। आपकी थर्ड क्लास है ना? 11 से 12। 11 से 12 सर। यस सर। हाँ तो अभी तो 10 से 11 हो रहा है यस सर। हाँ तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है। हेलो। यस प्रार्थना, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Is there any class before this? Most of the students have not joined yet, so maybe शायद आपका कोई क्लास चल रहा होगा। Sir, actually, I have not attended the previous lecture, so I don't know.
अच्छा ठीक है. Okay, so I'm just text a message to in the group. Okay, so if you see in the previous lecture we have discussed about what this just I'm going to the previous slide. Okay, so हम लोगों ने जो previous lecture था उसमें folded dipole antenna के बारे में discuss किया था. Clear? I'm just showing you this. Clear? So folded dipole antenna हमने discuss किया था जिसमें हमने बताया था we are using the two dipoles clear in parallel to each other. Clear? End by end दोनों connected होते हैं दोनों dipoles and this is your feed lines या feed point या इसको आप transmission line भी कह सकते हैं where you are providing the input to this. Clear? So, and if total current is I, then it will be distributed I by 2 in each dipole. Clear? So we have some defined some salient features of the folded dipole also. Clear? Then we have discussed the radiation pattern. Clear? So radiation pattern हम लोगों ने discuss किया किस तरीके से हमारा radiation pattern होता है. ठीक है? As you are using two dipoles, so basically you will get two radiation pattern for that. Clear? So you can see this radiation pattern and this radiation pattern. We both are appearing at the time. Clear? And then we have find the few parameters like impedance of the folded dipole antenna. So impedance is around 292 ohm. So we have just calculated for two dipole antenna. We have derived this impedance. Clear? So by considering a two-port network structure, as you can see in this figure. Clear? So we have just taking one source at a time because we have two sources of V by 2 magnitude of voltage. Clear? So one source is having current I1 and another one is delivering current I2. So in view of that, we have just calculated the Z12. Clear? Z11, Z12 we have just put over here and we have just find the value of you can say V by I. Clear? That will be your 4Z11 by taking the approximation. Clear? Then by taking the approximation of I1 is equal to I2 is equal to I. Clear? Then we have got the result impedance, that is Z is equal to 292 ohm. This we have calculated for two dipole. Clear? Then we have talked about the folded dipole antenna. Basically we have just taking the 3 arms as compared to 2 arms. Clear? हमने 3 arms ले लिए, एक ये हो गया, एक middle हो गया, एक this is your third arm. So we have just taken the 3 arms. You can see in this diagram also. So for 3 arms, the similar procedure will follow for 3 arms. It means the voltage distribution will be V by 3, V by 3, V by 3 for 3 sources. Clear? Also the current will be I1, I2, I3 along the 3 wires. So similar fashion we have calculated it again, the impedance, that is the radiation resistance or input impedance, that is 657 ohm. Clear? So we have just write the formulae in general relations for the input impedance. You can see that is 73 bracket में 1 plus R2 by R1 का whole square. This is the general relation. Clear? Then we have calculate if suppose we have two radii R1 and R2 of the dipole. Clear? And D is the spacing between the dipoles, so element. So you can find the impedance by this relation also, that is log D by R1 upon log D by R2 plus 1 का whole square. Clear? And outside में आपका 73 आ जाएगा. तो ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. Now we come to the next antenna, that is long wire antenna. ठीक है? This is another type of antenna. Clear? Long wire antenna क्या होता है? This is another type of antenna in which basically you use a conducting wire of length greater than lambda by 2. ठीक है? इसमें हमारा एक conducting wire होता है
जिसकी लेंथ जो होती है वो हाफ वेव डाइपोल मीन्स λ/2 होता है, हाफ वेव डाइपोल का जो लेंथ उससे ज्यादा होता है। क्लियर? मीन्स ग्रेटर देन λ/2 होता है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली हार्मोनिक एंटीना भी इनको हम बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक एंटीनास। क्लियर? सो लॉन्ग वायर एंटीना इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है in which your length is multiple of your n. Clear? So 1 2 3 n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। सो जो इसकी लेंथ होती है दैट इज ग्रेटर, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ λ/2। क्लियर? सो मल्टीपल का मतलब इन जनरल अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी n λ/2। n की वैल्यू आपकी 1 2 3 आप अप टू जहां तक भी जाएंगे वो आप वहां पे रुक सकते हैं। तो इसीलिए इसको हार्मोनिक एंटीना कहते हैं, क्योंकि इट जस्ट मल्टीप्लाइड द हाफ डाइपोल लेंथ विद द हार्मोनिक एन। क्लियर? ये बेसिकली किस रेंज में ऑपरेट करता है? ये 500 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में आपको रिजल्ट देता है, फ्रीक्वेंसी बैंड देता है। क्लियर? स्पेक्ट्रम देता है। दैट इज 5 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? इसमें मेंशन भी है, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। इसकी जो लेंथ है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज द मल्टीपल ऑफ हाफ वेव डाइपोल। मीन्स हाफ वेव डाइपोल सभी को पता है λ/2 लेंथ होती है हाफ वेव डाइपोल की। उसको मल्टीपल का मतलब हो गया कि n λ/2 अगर आप उसको रखते हैं तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना। क्लियर? सो यहाँ देख सकते हैं आप, वी हैव जस्ट मेंशन इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज द लेंथ ऑफ दिस एंटीना, दैट इज n λ/2। क्लियर? सो यू कैन सी इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो वी एंटीना, इन्वर्टेड वी एंटीना, इसको बेसिकली हम रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भी हम आगे बताएंगे। इसके बाद रोम्बिक एंटीना, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग वायर एंटीना की। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो बेसिकली वी विल टू टेक अ लॉन्ग वायर ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, बेसिकली हैविंग द लेंथ दैट इज n λ/2। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा लॉन्ग वायर एंटीना होता है उसकी लेंथ n λ/2 होती है। ठीक, सो इट कैन बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस्ड। इसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों डायरेक्शन से प्लेस कर सकते हैं। हाउएवर समटाइम्स द ओरिएंटेशन इज स्लॉपी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? एक्सटर्नल एक्साइटेशन हम बाहर से देते हैं, मतलब उसको वोल्टेज सोर्स आप बोलेंगे, थ्रू द फीड लाइंस, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। मीन्स बाहर से जो हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या फीड लाइन के थ्रू हम उसको एक्सटर्नली वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, जिसको एक्सटर्नल एक्साइटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो फीड लाइन है वो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? उसको सेंटर में या तो प्रोवाइड करते हैं ऑफ द वायर। ठीक है, जो लॉन्ग वायर एंटीना है, मीन्स जो लॉन्ग वायर है उसके सेंटर में या तो रखते हैं या एंड्स पे देते हैं। ठीक है, एंड एंड मतलब हो गया कॉर्नर साइड में। क्लियर? ओरिएंटेशन जो एंटीना का होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट्स बेसिकली शोज द पोलराइजेशन ऑफ एंटीना। क्लियर? ये ओरिएंटेशन आपको क्या शो करता है? बेसिकली द पोलराइजेशन ऑफ द एंटीना। ठीक है, पोलराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, जो भी पोजीशन होती है फीड पॉइंट की वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द लोब। ठीक है, कि लोब की डायरेक्शन क्या है? लोब मतलब हो गया कि जो आपको पैटर्न मिलेगा। क्लियर? जो भी पैटर्न मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि जो फीड पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, वो लोब के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं फीड पॉइंट को, जहाँ से भी हम इनपुट देते हैं, क्योंकि जहाँ फीड दे रहे होंगे दैट विल कंसिस्ट योर मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न। वहां पे आपको जो पैटर्न मिल रहा होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। क्लियर? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर। सभी को दिख रहा है ये? इज इट विजिबल? द स्ट्रक्चर इज विजिबल? Okay, so if you see the structure, we have just taken two supporting poles on the left and right corner. Clear? So ये आपका basically antenna structure है जो बीच में आप देख रहे हैं। ठीक है, and we have just take two poles or stand at the ends of the
antenna for providing the support. Clear? So this is your supporting mass. So this is your supporting mass and this is your supporting mass and this is your conducting wire. Clear? जो conducting wire है इसकी हमने लेंथ ले रखा है n lambda by 2, जो कि हमने बताया भी आपको कि जो भी हमारा लॉन्ग वायर एंटीना होता है दैट इज द हार्मोनिक्स ऑफ द हाफ वेव डाइपोल लेंथ. प्लीज मीन्स n इंटू लैम्डा बाई 2. क्लियर? सो ये लेंथ हो गया लॉन्ग वायर का. ये बेसिकली कंडक्टिंग वायर है. ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है. ये बेसिकली जो ये गैप देख रहे हैं ये हम एक आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं या इंसुलेशन भी कह सकते हैं आप. ये आइसोलेशन हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो स्टैंड हम लगाते हैं उससे हमारा कुछ गैप मेंटेन रहे, जो भी हम बाहर से एक पोल क्रिएट करते हैं. ठीक है? तो अब ये आपका जो पोर्शन है दैट इज इंसुलेटर पार्ट. ठीक है? दिस इज योर इंसुलेटर पार्ट. ठीक है? दिस इज योर इंसुलेटर पार्ट. ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये सब इंसुलेटर है. ठीक है? दिस इज योर इंसुलेटर. इसका रिजल्टेंट अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा. ठीक है? यहाँ पे ये फीड लाइन है, ये लॉन्ग वायर है. ठीक है? लॉन्ग वायर मीन्स यही हो गया आपका. इसको हम बाहर से फीड दे रहे हैं एक्सटर्नली यहाँ से. तो दिस इज योर फीड पॉइंट जहाँ से आप एक्साइटेशन मीन्स इनपुट लगा रहे हैं वोल्टेज सोर्स. क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये कुछ हमारा बेसिकली एक मेन पार्ट है. अब इसमें हमने कुछ इसमें एक लाइन भी लिखी है. In ease of construction offered by these antennas is due to the fact that a simple conducting wire is end-to-end connected. ठीक है? Between a transmitting and receiving antenna. तो this is your transmitting side and this is your receiving side. For example, so end-to-end हम long wire connect करते हैं like this. ये structure जो है end-to-end connected होता है. Clear? ठीक है? इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा नीचे. I'm just writing this and you may also note down. Clear? Means the direct connection, the direct connection of the long wire, the direct connection of the long wire. ठीक है? एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम हार्मोनिक एंटीना भी है. ठीक है? हार्मोनिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना, मैंने मेंशन भी किया है. इससे इस तरह से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है? ये देखिए लिखा भी है मैंने. इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक एंटीना. यहाँ देख सकते हैं आप ये. ठीक है? ये हार्मोनिक एंटीना भी होता है. तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द एबव इज नोन एज या विच ऑफ द गिवन आंसर्स आर नोन एज हार्मोनिक एंटीना. ठीक है? तो आपको ये पहचानना होगा. दिस इज ए लॉन्ग वायर एंटीना. इसको हम हार्मोनिक एंटीना भी कहते हैं. ठीक? सो द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द लॉन्ग वायर बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन टू एंड्स, ठीक है, allows it to allows it to accept the signal from the transmitting station. means transmitting station. ठीक है? transmitting station and radiate the wave so that and radiate the wave so that it can be received at the other end. It can be received at the other end. ठीक है? It can be received at the other end. Clear? So एक तरफ से ट्रांसमिट होगा, एक तरफ से रिसीव होगा थ्रू लॉन्ग वायर. क्लियर? जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है यहाँ से ट्रांसमिटिंग साइड से सपोज ट्रांसमिट होगा, रिसीविंग साइड पे ये रिसीव होगा. लोड के थ्रू हम रिसीव करेंगे सिग्नल को. ठीक है? जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो लोड के थ्रू मिलेगा. ठीक है? अगर हम वर्किंग की बात करें, हाउ इट वर्क्स बेसिकली. ठीक है?
तो जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा लॉन्ग वायर एंटीना होता है बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हाफ वेव डाइपोल्स। मल्टीपल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वी आर यूजिंग एन लैम्डा बाई टू, एन लैम्डा बाई टू इज द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना, हाफ वेव डाइपोल। सो एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इसलिए ये मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल हाफ वेव डाइपोल कंसिस्ट है full long wire antenna. Clear? So its principle of operation is basically similar to half wave dipole antenna. So you know that these are the types of antenna where the length is greater than half wavelength. So when such a long conducting wire is excited when with the input voltage, the charge carries drift according to, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोग इसकी वर्किंग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि वर्किंग इंपॉर्टेंट है। I'm just trying to mention it. Clear? I'm just trying to write it. Miss working. ठीक है, वर्किंग में आप लोग को मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। Just you may write it. Clear? When such a long conducting wire is excited, conducting wire is excited. Excited का मतलब है कि जहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, और एक्साइट कहाँ से कर रहे हैं इसको, फीडर पॉइंट से, फीड लाइन से। ठीक है, एक्साइटेड कॉमा with the input voltage, excited with the input voltage, इसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। ठीक है, excited with the input voltage comma, then the charge carriers drift, then the charge carriers drift, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे, या ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज सुना होगा आपने। ठीक है, ड्रिफ्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द applied half of the signal, applied half of the signal। इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो एसी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है ना, इनपुट पे जो कि आप देख रहे होंगे कि जो भी हम यहाँ फीड लाइन के थ्रू या ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इनपुट सिग्नल अगर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे फीडर लाइन पे, जैसे ये हमारा कनेक्टेड है, तो बेसिकली क्या है, दिस इज योर एसी सिग्नल। क्लियर, दिस इज योर एसी सिग्नल। तो इसमें एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ। क्लियर, तो इसीलिए हाफ जो हम बोल रहे हैं वो हाफ यही बोलना है। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एज पर योर फर्स्ट पास पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देन फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर, सो इनपुट पे एक बार पॉजिटिव हाफ जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। क्लियर, सो बेसिकली इट मींस इफ पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल इज अप्लाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इफ पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल इज अप्लाइड इट मींस, लिख देता हूं मैं, दैट इज if positive half of the signal is applied, of the signal is applied, जब आप पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे, then charge carrier experiences, then charge carrier, ठीक है, experiences या experience, क्योंकि चार्ज कैरियर कई सारे होंगे। ठीक है, then charge carrier experience what, attractive, charge carrier experience attractive force। clear, while ड्यू टू द नेगेटिव हाफ साइकिल, पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ,
ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की, अब ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? द चार्ज कैरियर एक्सपीरियंसेस रिपल्सन। क्लियर? पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो चार्ज कैरियर होंगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, वो अट्रैक्टिव फोर्स बियर करेंगे। एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके रिपल्सिव फोर्स बियर करेंगे। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस व्हाट? रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स उनको ऐड करेगा। सो जो क्यूमुलेटिव एक्शन होगा ऑफ द चार्ज कैरियर विद इन द कंडक्टर, दैट विल जनरेट अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है ना? तो इनकी वजह से जो भी आपको क्यूमुलेटिव एक्शन मिलेगा, सो यू कैन से क्यूमुलेटिव, द क्यूमुलेटिव action of the charge, the cumulative action of the charge carries within the conductor, ठीक है, carries within the conductor generates a varying electric field, generates a varying electric field, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों की वजह से, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से, इससे क्या होगा? एक क्यूमुलेटिव जो चेंजेस आएगा चार्जेस की वजह से, वो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्रिएट ए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस इन दिस वे, हेंस इन दिस वे, ठीक है, द सिग्नल बेसिकली रेडिएट करेगा, द सिग्नल, ठीक है, द सिग्नल इज रेडिएटेड बाय द signal is radiated by the what? Long wire antenna at the other end, long wire antenna at the other end, ठीक है, दूसरे साइड में से, लोड की साइड, उसको आपको सिग्नल का रेडिएशन पैटर्न आपको मिलेगा लोड की तरफ। ठीक है, सो आपको चूंकि पता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सो अगर हम सेलिएंट फीचर्स की बात करें, ठीक है, इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है चूंकि लेंथ इसकी क्या होती है, दैट इज द लेंथ इज योर ग्रेटर देन हाफ वेव डाइपोल मींस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो चूंकि लेंथ ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होती है, इसका मतलब आपको जो है डायरेक्टिविटी भी क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। डायरेक्टिविटी क्या मिलेगी? हाई अचीव होगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ इज एटली कह सकते हैं आप प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टिविटी, so your directivity will also increase, clear, with the increase of the length of the long wire antenna। ठीक है, और आप इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टिविटी आपकी और इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर? और अगर हम बात करें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे अगर आपका एंटीना वर्क कर रहा है, मीन्स इफ योर यू कैन से इन केस ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना working for lowest frequency, working for lowest frequency, ठीक है, considered as lowest frequency, the length is generally, the length is generally considered as half wavelength,
the length is generally considered as half wavelength, ठीक है, half wavelength, and external feeding is provided at the end, and external feeding is provided at the end, provided at the end, ठीक है. So this is another feature of this, clear. जनरली जो हम लोग प्लेस करते हैं एंटीना को वो हॉरिजॉन्टल मैनर में प्लेस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो जो रेडिएशन आपको मिलेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री टू 24 डिग्री, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज अनदर फीचर ऑफ दिस, क्लियर, ठीक है. कि मीन्स जो आपका एंटीना है जनरली it is placed in horizontal manner, ठीक है. it is placed in horizontal fashion या horizontal manner, horizontal manner में हम लोग प्लेस करते हैं. so with respect to ground लिख दीजिएगा क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, with respect to ground. so जो भी रेडिएशन होगा ये आपको जो रेडिएशन देगा इस केस में तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड होगा, रेडिएट्स हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव. इस केस में आपको जो मिलेगी हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव मिलेगी, ठीक है, एट एन एंगल बिटवीन, किस एंगल के बीच में मिलेगा, एट एन एंगल बिटवीन 17 डिग्री टू 24 डिग्री, इस एंगल के बीच में मिलेगा 17 डिग्री टू 24 डिग्री, क्लियर. तो ठीक से लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन 17 डिग्री टू 24 डिग्री, इस एंगल के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है, रिलेटिव टू सरफेस ऑफ अर्थ, रिलेटिव टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको हम बेसिकली जो क्लासिफाई करते हैं अभी हमने आपको बताया भी था. अच्छा, इसका मैं रेडिएशन पैटर्न आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं. ठीक है. इसका जो रेडिएशन पैटर्न मिलता है एक तो बाई डायरेक्शनल भी होता है, यूनि डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है. दोनों तरफ से हमारे रेडिएशन पैटर्न मिलते हैं, बाई डायरेक्शनल एज वेल एज यूनि डायरेक्शनल, ठीक है. तो अगर हम बाई डायरेक्शनल की बात करें तो देख सकते हैं, अब मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको. रेडिएशन पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ. रेडिएशन पैटर्न, ठीक है. तो रेडिएशन पैटर्न इसका कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी फीड लाइन है, इफ यू सी, एक चीज ध्यान रखिएगा. अच्छा, इससे पहले मैं आपको पहले वो बता देता हूँ इसके टाइप्स, क्योंकि ये रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट कंडीशन के अंदर आएगा. तो मैं पहले इसके टाइप्स बता देता हूँ आपको, देन वी कम टू दिस पॉइंट, क्लियर. सो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस या टाइप्स ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना अगर हम बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है. तो लॉन्ग वायर एंटीना के क्या टाइप्स हैं, ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है. पहला है रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है. और दूसरा क्या है, नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, नॉन
रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है, रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट, इसको हम लोग ट्रेवलिंग वेव एंटीना भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेवलिंग वेव एंटीना। इसको इन जनरल हम लोग रेजोनेंट जो होता है हमारा बेसिकली, ठीक है, रेजोनेंट को हम लोग बेसिकली जो अभी हम इसका डायरेक्शनल पैटर्न दिखाएंगे आपको, दैट इज बाई डायरेक्शनल पैटर्न आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। और नॉन रेजोनेंट जो होता है वो भी, ये दोनों बेसिकली वी एंटीना की कैटेगरी में आता है। एक वी एंटीना होता है, वी एंटी, ठीक है, ठीक है, तो वी एंटीना की कैटेगरी में आते हैं ये दोनों ही आपके, रेजोनेंट एज वेल एज नॉन रेजोनेंट, ठीक है, दोनों ही आपके वी एंटीना की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों ही आपके वी एंटीना की कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ वी एंटीना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें इसमें, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ वी एंटीना एंड, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, दैट इज अब हम लोग आते हैं अपने टाइप पे, दैट इज रेजोनेंट। तो रेडिएशन पैटर्न हम देखेंगे रेजोनेंट, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द, ठीक है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन, pattern of resonant long wire antenna. Radiation pattern of so radiation pattern of resonant long wire antenna, resonant long wire antenna, ठीक है। तो देखिए रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना का अगर हम रेडिएशन पैटर्न देखें तो किस तरीके से हमको पैटर्न मिलता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फीड लाइंस है, मैं फीड लाइन के थ्रू बताता हूँ आपको जिससे ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है। सो दिस इज योर फीड लाइन एंड दिस इज योर वायर, तो जो भी पैटर्न मिलेगा वो हमें वायर पे ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर वायर, ये आपका फीड लाइन है या फीड पॉइंट बोल सकते हैं आप, दिस इज फीड पॉइंट, ठीक है। जो पैटर्न मिलेगा हमको यहाँ पे कहीं मिलेगा वायर के पास, तो दैट विल बी समथिंग लाइक जस्ट शोइंग यू, ठीक है। सो so this is the pattern, clear, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल पैटर्न, क्लियर, ठीक है। इज इट क्लियर है सभी को? दिस इज एग्जैक्टली द बाई डायरेक्शनल पैटर्न। इसी तरह से एक पैटर्न और मिल जाएगा आपको, अगर ये साइड लोब्स, ये जो हमारे बैक लोब्स हैं, ये हम, बैक लोब डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ठीक है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम एंगल वाइज इसको देखें तो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। पूरा 360 डिग्री का रोटेशन है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं n की वैल्यू 3 एंड l हमारा जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि n हमने 3 रख दिया है, तो n लैम्डा बाई 2 के हिसाब से 3 लैम्डा बाई 2 के लिए पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए वी हैव जस्ट टेकन अनदर, अगर हम मान लीजिए n की वैल्यू 4 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 करते ही क्या होगा, ये जो हमारे लोब्स हैं ये बढ़ जाएंगे, ये जो बीच वाले ये वाले लोब्स आप देख रहे हैं ये आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले जो लोब्स हैं ये आपके इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, ठीक है। सो इफ यू सी इधर वाले रेड, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, n की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। सो l जो होगा वो 4 लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। जैसे 3 लैम्डा बाई 2 हमने लिया था, या 4 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगेन यू कैन ड्रॉ द पैटर्न लाइक दिस, सो दिस इज योर पैटर्न, ठीक। Just I'm trying to make it correct, ठीक है। तो पैटर्न इज लाइक दिस, सो यहाँ पे आपको दो पैटर्न मिलेंगे, एक ये आया, एक ये। दिस इज कॉल्ड द फीड पॉइंट, ये आपको बोलते हैं फीड पॉइंट डाइट, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज हमको मिल रही है, दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट। अब यहाँ पे डुअल स्लोप मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो आपके लोब्स हैं, ये जो आपके दो एक एक बढ़ गए हैं यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस, क्लियर। सो दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, this is theta is equal to 0 degree, and this is theta is equal to 270 degree, and this is theta is equal to 180 degree, ठीक है। so this type of bi-directional pattern you will get, clear। ये समझ में आ रहा है सभी को, is it clear, ये सभी को क्लियर है। इसमें आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग व्हाट, हाँ मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आपको मेजर बीम मिल रही हैं। 4 मेजर बीम कौन सी हैं, 1 2 3 4, ये आपकी मेजर बीम है, ठीक है, दोनों में ही 4 मेजर बीम है। 2 आपकी क्या है, 2 और मोर आपकी माइनर बीम है, 2 और मोर माइनर बीम्स हैं, ठीक है। 2 और उससे ज्यादा आपकी माइनर बीम्स हैं, ठीक है, माइनर बीम या लोब भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया, बताइए बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो ये रेडिएशन पैटर्न है बेसिकली जो हमने हमने आपको बताया है, दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न, क्लियर। अगर हम So ये अभी part नहीं clear। हाँ क्या हो गया, So ये major beam और minor beam वाला part नहीं clear। अच्छा ये
देखिए मेजर बीम वो होती है जो आपको, जैसे ये एक्सेस है, ठीक है, दिस इज योर एंटीना एक्सेस, क्लियर। या एंटीना वायर जो है आपका ये है, इसी यही एक्सेस है, ठीक है। तो एंटीना वायर पे के अराउंड या उस डायरेक्शन में जो पैटर्न मिलेगा, दैट विल योर मेजर लोब, ठीक है। तो जैसे ये 3 λ/2 है, ठीक है, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखी है, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग द मेजर पैटर्न लाइक दिस। तो ये आपका मेजर पैटर्न है, ये आपके साइड पैटर्न, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर बीम, ठीक है। ये माइनर बीम हो गया जो कि 90 डिग्री पे है, इस वायर से देखेंगे आप, ठीक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो पैटर्न है, दैट इज फॉर 4 λ/2 मीन्स एन वी आर टेकिंग एज 4, सो वी आर जस्ट गेटिंग दिस 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 लोब्स आर देयर, ठीक है। और ये जो आपके हैं, ये जो मेन लोब हैं, ये वाले हैं जो कि उसी एक्सिस की तरफ मिल रहे हैं, ठीक है। दीज आर द एक्सिस डायरेक्शन, या आप डायरेक्शनल पैटर्न बोल सकते हैं, दिस इज योर डायरेक्शनल पैटर्न। यही आपके जो है मेजर कह सकते हैं कंसीडरेबल लोब्स हैं, वो कंसीडरेबल बीम्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर एग्जैक्टली द माइनर लोब्स दैट आर लेस कंसीडरेबल और नॉन कंसीडरेबल लोब्स, ठीक है। ये फीड पॉइंट है जहां से हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। सो इसको बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा कहलाता है बाई डायरेक्शनल पैटर्न।